Good evening, one and all, and good evening to all the participants, and good evening to all the loving students, faculty members, and all the media educators and the educators, teachers, and the participants from the different part of the country and different state of the country. I welcome to you on behalf of the Parul University in this connection of this webinar series. Regularly, we are organize the webinar and we are trying to the good speakers for all of you. Today's we have in the webinar the speaker with us, Dr. Vidushi Sharma, and she is the chief guest and the speaker of today's webinar. The topic of the webinar is the women entrepreneurship. But before they start this webinar, I would love to introduce to our esteemed guest, Dr. Vidushi Sharma. Dr. Vidushi Sharma is the academic counselor in IGNOU, OSD official on special duty in NIOS, National Institute of Open Schooling, specialist in the Central Hindi Directorate, Department of the Higher Education, Ministry of Education, Government of India. She has 12 years teaching work experience in various organizations. आज का अभिमन्यु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर wrote the biography on her, and in collection of the poem of the Ma, one of them is written by her is entered in the Guinness Book of World Record and Maharashtrian Book of World Record. The title Mahapragya contains the 1121 points. She is one of them in the British World Record. She attended the various conferences in the presence of the Honorable President Ramnath Kovind, sir, and Honorable Prime Minister of Narendra Modi, sir, and Governor of Haryana, Deputy Governor of Pondicherry, CM of Haryana. She attended various seminar, webinar as a keynote speaker on the various national and international platform. An edited book by her on the Sardar Patel is coming through the Gyan Garima Sindhu UGC listed as the with Commission for the Scientific and the Technical Terminology, Ministry of Education. She presented 40 research papers in the national seminar, conference and programs. She also presented 22 research papers and internal seminar in the conference and programs. She also participated in the faculty development workshop organized by the MHRD, and she published the 27 book chapters and her 27 research paper and article published in various research journals. She also received the 10 national and the state level and international awards. She also member of the various research journal. So on behalf of Parul University, we welcome to you, ma'am. We welcome to you, ma'am. We welcome to you, ma'am. On behalf of the Parul University family, on behalf of the Honorable President of the Parul University, on behalf of the Honorable Vice Chancellor of the Parul University, on behalf of the Honorable Registrar of the Parul University, we welcome to you, sir. We welcome to you, madam. And now I over to you, ma'am. Please deliver your lecture on and deliver your speech on the women entrepreneurship. And enlighten to us, enlighten to our participants, enlighten to the students, and enlighten to our faculty members and the media professional and other participants. Those are the attending the different part of the country. So now I over to you, ma'am. Please begin your lecture speech and start your speech. I request you, ma'am, please start. मैं निवेदन करता हूं मैडम आप स्टार्ट कीजिए अपना स्पीच एंड वी वेलकम टू यू. हम आपका स्वागत करते हैं पीयू वेबिनार प्लेटफॉर्म पारुल यूनिवर्सिटी पर. प्लीज मैडम आपका प्रेजेंटेशन हमें दिखाई. थैंक यू मैम. आपका प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है. एक मिनट. हाँ यस मैम आप थोड़ा क्लिक कीजिए तो आप. हाँ यस अब प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है. थोड़ा फुल स्क्रीन कर देंगे जिससे कि आपका ये प्रेजेंट. हाँ यस अब आपका प्रेजेंटेशन ठीक से दिखाई दे रहा है. यस मैडम आप स्टार्ट कीजिए मैडम. यस सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने इतना अच्छा सुअवसर दिया और आप सभी का जो सामने है जो नहीं है सभी स्टूडेंट्स का, सभी फैकल्टी मेंबर्स का, रजिस्ट्रार सर और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और आपने मुझे जो ये अवसर दिया. आज जो मेरा विषय है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, उद्यमशीलता जिसको कि कहते हैं. मैं इसे हिंदी में ही डिलीवर करूंगी, बीच बीच में हम इंग्लिश भी यूज करते रहेंगे ताकि सबको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहे. तो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपना लेक्चर. उद्यमशीलता वो या
एंटरप्रेन्योरशिप, ज्यादातर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में अभी भी जो है क्षेत्रीय जो है गांव की महिलाओं को इस चीज की बहुत जरूरत है। जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो अभी भी उस क्षेत्र में वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है और उसके लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा एक हथियार है। वहां पर ये चीज बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। जी, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता वर्तमान परिप्रेक्ष्य यानी कि टुडेज वर्ल्ड में क्या है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सृजनशील, चिंतनशील, प्रगतिशील, मननशील और विचारशील प्राणी है। वो जो भी परिस्थितियों में, जो भी प्रकृति में होता है उस पर सोचता है और उस पर विचार करता है। और जब भी कुछ भी नया शुरू होता है तो वो एक विचार से शुरू होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि जैसे ओला उबर जो आज इतना बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक विचार से शुरू हुआ था कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं टैक्सी तक जाता हूं तो क्यों ना ऐसा कुछ हो कि वो टैक्सी मुझ तक आ जाए। सिर्फ एक विचार से इस बात की शुरुआत हुई और उन्होंने इस पर मनन किया, उस पर चिंतन किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है कि ओला उबर किस तरह से काम करता है। एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और किसी विशेष परिस्थिति में, आवश्यकता में, जज्बात में या जोश में, निराशा में, ये सब परिस्थितियां हैं, कुछ ना कुछ नया जागृत होता है। जैसे हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसमें ये सभी परिस्थितियां बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं जब हम कुछ भी नया करते हैं। तो निराशा में जब व्यक्ति कुछ नया करने की ठान लेता है तब यह विचार हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के अनुसार, बहुत बड़े ये जाने माने साहित्यकार भी हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनका विचार है कि विचार की शक्ति परमाणु बम से होती है। एक एटम बम में कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है, लेकिन विचार की शक्ति उससे भी ज्यादा है, क्योंकि एटम भी जब बनाया गया है वो एक विचार से ही उत्पन्न हुआ है। हमारे सामने ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं जिन्होंने लीक से हटकर सोचा और अपनी एक मिसाल कायम की। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो इस समाज में बहुत आगे बढ़ते हैं और एक मिसाल देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों के एग्जाम्पल्स हम आगे भी देंगे। अपने लीक से हटकर कुछ किया कि वो सिर्फ धारा के साथ नहीं बहते गए, धारा से विपरीत आगे आए हैं और उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ मेड मैन स्थापित किया और एक मिसाल कायम की। इसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ होता है वो इस सिद्धांत का होता है। एक मोटिवेशनल थ्योरी है अब्राहम एच मास्लो की, उसमें आप देखेंगे, ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो सिद्धांत काम करता है वो सबसे बड़ा ये है, कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, स्व प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि मैस्लो पिरामिड या मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है। सबसे पहले हमारी जो नीड्स होती हैं ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। जब तक हमारी जो प्राइम नीड्स हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान और सेक्स इत्यादि, जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ सकते हैं। जब हम ये पूरी कर लेते हैं उसके बाद हम दूसरी बातों के बारे में सोचना आरंभ करते हैं। दूसरी जरूरतें हैं सुरक्षा की जरूरत, यानी कि हमारी एक सेफ लाइफ शुरू हो जाती है। उसमें हमारी आती है शारीरिक, हमारी सुरक्षा हो जाती है कि हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है। उसके बाद हमारी नौकरी है, यानी कि हम फिजिकली और इकोनॉमिकली सेफ हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हम, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। उसके बाद जितने भी हमारे पास संसाधन हैं वो है स्वास्थ्य आदि की जरूरतें। जब ये पूरी हो जाती है, यानी हमारे पास अपना मकान है, हमारी गवर्नमेंट जॉब है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो इसके बाद हम
नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। नहीं तो हम इन्हीं पर ही सोचना आरंभ करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारी ये नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं सोच सकते। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि नीड्स और वांट्स दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक हमारी नीड्स पूरी हो जाती है तो हम वांट्स पे हैं। ये नीड्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। नीड्स और वांट्स में हमेशा अंतर होना चाहिए, क्योंकि नीड्स के बिना जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन वांट्स के बिना चल सकता है। इसीलिए हमें नीड्स और वांट्स में एक अंतर बनाकर रखना चाहिए कि नीड्स जरूर पूरी हो हर व्यक्ति की, ताकि वांट्स हम आगे टाइम टू टाइम पूरी करते जाएं। इसके बाद आता है तदात्मिकता। यहाँ पर एक इमोशनली अटैचमेंट की बात आती है कि ये सब कुछ होने के बाद भी हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज की जरूरत होती है, रिश्तों की जरूरत होती है, वो अकेला नहीं रह सकता है। तो इसी के लिए उसे दोस्ती, परिवार, जीवन साथी यानी कि शादी करनी होती है। उसके बाद उसे अपनी मित्र मंडली भी चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपने समाज में रह सके, अपनी खुशी को, अपनी परेशानियों को अपने साथ बांट सके। इसके बाद आता है आत्मसम्मान का लेवल। या जब हम बात करते हैं अपने सम्मान की और दूसरों को सम्मान देने की बात आती है, एक लेवल ऐसा आ जाता है जहां पर हमें सम्मान की जरूरत होती है। जो हमने ग्रहण किया है, जो अर्जित किया है, उसके लिए एक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ये लेवल आते आते लगभग इंसान की आयु 50, 60 या 70 भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ये सब अचीव करते जाते हैं तो उन सब में एक समय लगता है। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये लेवल बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। ये लेवल ऐसा होता है जब हम समाज को देते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमने इस समाज से बहुत कुछ लिया है, अब हमारा समय है समाज को लौटाने का। जब हम टाटा की बात करते हैं, अगर आप रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो वो एक सेल्फ मेड मैन है और वो इस चीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वो एक लीजेंड एग्जाम्पल है इस चीज के बारे में कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब हम बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं एक समय के बाद, तो हम वो समाज को लौटाना है। ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ये आपको लगभग समाज में दिखाई देगा और ये उद्यमशीलता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा गति प्रदान करता है। यहाँ पर इन्फोसिस की बात मैं जरूर करूंगी। उनके जो संस्थापक हैं, उनके बारे में भी अगर आप जाने तो सुधा मूर्ति और श्री मूर्ति हैं उनके, तो वो भी इस लेवल को पार कर चुके हैं। वो भी अब समाज को देने की बात करते हैं। इसके बाद जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं कि एक सफल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप जो समाज से अलग आकर लीडरशिप लेगा, तो उसमें एक KAS प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है। इसमें K फॉर आता है नॉलेज। सबसे पहले जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, उसकी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज ऐसी नहीं कि थोड़ी सी नॉलेज हो, उसके बारे में हमें उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ पता होना चाहिए। उसके लू पॉइंट्स कौन से हैं वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आता है ए फॉर एटीट्यूड। सही अभिवृद्धि होना बहुत जरूरी है। जिस भी काम के बारे में हम सोच रहे हैं, तो जब भी हम कहते हैं कि वेल प्लान इज हाफ डन, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो समझिए आधा पूरा हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारी प्लानिंग में ही शामिल है। जो भी हम काम करेंगे उसमें पहले फील्ड वर्क और होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो जो भी एक सफल उद्यमी है या वो सफल होना चाहता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके पास KAS प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। इसमें K फॉर नॉलेज है, A फॉर राइट एटीट्यूड है, उसके बाद है S नेसेसरी स्किल्स। नेसेसरी स्किल्स कौन सी हैं?
कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलने की शक्ति होनी चाहिए। जो आपके विरोधी भी हैं, आप उनको भी साथ लेकर चलिए। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप इतना सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं, नेक्स्ट लेवल पार कर सकते हैं। उसके बाद है कौशल संवर्धन के लिए जरूरी दक्षता और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यानी कि स्किल जो होनी चाहिए उसमें हम परफेक्ट हो, और उसके साथ साथ एक सिस्टमेटिक सिस्टम बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें हमारे पास होना चाहिए 4 P's। जो भी हम काम करना चाहते हैं, जिसके भी बारे में हम सोच रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 4 P's का फॉर्मूला जरूरी है। इसमें फर्स्ट प्लेस आता है, पहले नंबर पर आता है प्लेस, कि हमें प्लेस कौन सा यूज करना है, कौन सा चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक महिला थी जिसके घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, वो जब अपना काम करती हैं तो वो किस तरह से सक्सेसफुल होती हैं। एक महिला थी, उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनके गांव के बाहर एक बस आती थी, और वो मतलब गांव में अगर आपने कभी देखा, बसों की सर्विस बहुत कम होती है। आधे 1 घंटे में एक बस आती है, उसके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो वो एक दिन खड़ी थी, तो सेम वही बात आई कि उसके मन में एक विचार आया कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, और लोग कम से कम 15 से 20 मिनट एक बस के लिए इंतजार करते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पर एक चाय की दुकान खोली जाए। तो उसने सबसे पहले एक विचार आया, उसने उस पर काम किया, उसने प्रॉपर प्लेस को चूज किया कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पता है कि चाय की दुकान हम यहाँ पर खोलते हैं कि 20-25 मिनट में लोग चाय जरूर पिएंगे। उसने ये चाय की दुकान खोली और बहुत अच्छा सब कुछ चलने लग गया। इसके बाद उसने सेकंड की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट ऐसा चूज करना चाहिए जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो, क्योंकि डिमांड अगर नहीं होगी तो उसकी सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो उसने प्रोडक्ट क्या यूज किया, चाय के बाद उसने जब देखा कि उन लोगों के साथ बच्चे भी हैं जो यात्रा करते हैं, तो उसने इसके साथ साथ कुछ भी बनाने शुरू कर दिए, ताकि लोग जो जल्दी में आते हैं या बाहर से आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, ताकि उनकी भूख शांत हो सके। इसके बाद उसने कुछ पैकेट्स रखने शुरू कर दिए, जैसे फास्ट फूड के या बिस्किट के पैकेट, ताकि बच्चे उसके साथ वो देखकर अट्रैक्ट हो और उन्हें वो लेने के लिए मजबूर हो जाए। तो प्लेस और प्रोडक्ट का बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये काम करता है। और टाइम बीतते बीतते सेल इतनी अच्छी हो गई कि उसे एक और दुकान खोलनी पड़ी कि यहाँ पर बहुत अच्छी सेल हो रही है। तो प्लेस और प्रोडक्ट ये काम करता है। उसके बाद आती है प्राइस की। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, मार्केट में हम अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो। ज्यादा प्राइस हम नहीं रखेंगे। उसमें जो हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं, उसमें अपना मार्जिन बहुत कम रखना चाहिए, क्योंकि शुरू में लाभ की आकांक्षा नहीं रखेंगे। हम प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसको पब्लिसिटी करेंगे इस अपने प्रोडक्ट की, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और प्राइस ऐसा हो कि वो अफोर्डेबल हो, सभी लोग उसे लेने में इंटरेस्ट दिखाएं। उसके बाद 4 P's में आता है प्रमोशन यानी पब्लिसिटी। हम अपने चीज की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में हमारे पास सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ कि हम उसमें हर प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज की प्रमोशन कर सकते हैं। आप टीवी या रेडियो पे देखेंगे कि कितनी एड्स आती हैं, हर चीज की पब्लिसिटी की जाती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की नॉलेज में पहुंचता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए इस 4 P's का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक
3 R's का फॉर्मूला हम जानते हैं कि यहाँ पर मैं बात करूंगी हमारे घर में ज्यादातर जो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आज भी राजस्थान या हरियाणा के कई ऐसे गांव हैं जहां पर लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है जितनी मेट्रो सिटीज में मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी का ये फॉर्मूला है, जो नोबेल प्राइज विजेता है, जो आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा है कि ये जो स्किल्स होती हैं, जो हम बचपन में ही हम देख सकते हैं, और ये हिंदी में भी कहावत है कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बचपन से ही उनमें वो गुण दिखाई दे जाते हैं। तो अगर हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में, हमारे कैंपस में, हमारे कॉलेज में कोई ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो हमें उस चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जाकर हमारे इंडिया का नाम रोशन कर सके, आगे बहुत कुछ बन सके। देखते हैं कि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, प्रॉपर उनके पास फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, उनके पास ऐसी अवसर नहीं मिल पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, तो वो आगे नहीं जा पाते। तो हम कोशिश करें कि हमारे आसपास जो भी हैं, हम उनको पहचाने और ये सब उन्हें देने की कोशिश करें, कलेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो आगे जाकर किसी भी फील्ड में आगे नाम रोशन कर सके। तो पहला फॉर्मूला है वो है 3 R's का फॉर्मूला। सबसे पहले है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहचान। अगर हमारे आसपास, हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं, हम सभी समाज में भी रहते हैं, अगर हमारे आस पड़ोस में या हमारे स्कूल कैंपस में, हमारे कॉलेज कैंपस में कोई ऐसा बच्चा दिखाई देता है, ऐसा स्टूडेंट दिखाई देता है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर कोई यूनिक होता है, हर कोई पढ़ने में आगे नहीं होता है, इसीलिए स्किल्स के ऊपर गवर्नमेंट भी आजकल बहुत ध्यान दे रही है कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो किसी और स्किल में आगे हो, तो हम उस चीज को रिकॉग्नाइज करें, उसे पहचानें। सबसे पहले पहचान की आवश्यकता होती है, उसके बाद आता है रिस्पेक्ट। अगर किसी बच्चे में कुछ अलग से टैलेंट है, कुछ अलग से उसके अंदर स्किल दिखाई देती है, तो हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, उसे आगे हमें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है रिवॉर्ड, कि अगर हमारे आसपास कोई भी ऐसा है, यहाँ पर मैं बात करूंगी कि इवन चाइल्ड ही नहीं, अगर कोई वुमेन ऐसी है, कोई लड़की ऐसी है, तो भी हमें ये सब काम करना चाहिए। अगर कोई लेडी इस फील्ड में आना चाहती है, उसके पास कोई विशेष हुनर है, स्किल है, तो हम उसे पहचाने, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसे रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड इन द सेंस कोई हमें कैश प्राइज नहीं देना है, कोई उसे हमें ट्रॉफी नहीं देनी है, हमें सिर्फ उसको सपोर्ट करना है, वो सिर्फ बातों से भी हो सकता है। और ये मोटिवेशन इतना ज्यादा काम करता है कि बहुत कुछ आगे किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप में आजकल बहुत सी महिलाएं आगे आई हुई हैं, जो सिर्फ 5वीं पास तक भी हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्किल के चलते, राजस्थान की एक महिला है, नाम मैं भूल रही हूँ उनका, उन्होंने पढ़ाई से ही आज कितनी महिलाओं को संगठित किया, उसके बाद अपना उन्होंने इसका बिजनेस शुरू किया, और आज वो अपने राजस्थान के कल्चर को और उसकी कढ़ाई को, एम्ब्रॉयडरी को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उसे प्रेजेंट भी कर रही हैं और बहुत अच्छा नाम भी कमा रही हैं और अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं वो। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें बहुत से दिखाई दे जाते हैं समाज में। इसके बाद ये देखिए, ये फिगर है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमें अपॉर्चुनिटीज को कलेक्ट करना है, पहचानना है।
उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए अवसर तलाशना और उन्हें भाप कर इस ओर अभिप्रेरित। उद्यमशीलता संबंधी शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है संसाधन जुटाने के लिए, योजना बनाने के लिए और चयन के लिए क्षमता विकसित करना। वो जो पहचान हमने ली है उसके बाद हमें उसे सही से गाइडेंस देना है, मोटिवेट करना है ताकि वो इस फील्ड में आगे चले जाएं। ऐसी योग्यता प्राप्त करना ताकि उद्यम को योजना बनाई जा सके और इसकी देख रेख की जा सके, उसे प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पर देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। अगर हम इकट्ठी होती हैं, क्योंकि महिला शक्ति बहुत बड़ी होती है, आप सभी जानते हैं कि दुर्गा का अवतार मानी जाती है। वो घर भी बहुत अच्छे से, बाहर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है और उसकी जो स्टेमिना है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा है। महिलाएं बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। आप देखिएगा कि हमारे पुराने घरों में जो चाहे अनपढ़ ही होती थी हमारी माएं, हमारी दादियां, तो वो सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लेती थी कि सभी को टाइम से स्कूल भेजना है, सभी को टाइम से खाना देना है, सभी को टाइम से सब काम करना है। तो वो मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए, फंक्शंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर कि किस तरह से फंक्शन होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है, देखिए, लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में हमने कहा कि वो चाहे मेन हो या वुमेन हो, लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत जरूरी है उसमें। जब तक वो क्वालिटीज मेंटेन नहीं होंगी तब तक हम ग्रुप को नहीं बना सकते हैं। उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत जरूरी है ग्रुप को लीड करने के लिए, या किसी भी संस्था जिससे हम जुड़े हैं वहां पर लीडरशिप की क्वालिटीज होना। सेकंड आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन ही सही दिशा में नहीं देंगे तो हमारा जो एफर्ट है वो वेस्ट चले जाएंगे। तो एफर्ट्स को और जितनी भी हमारी स्किल है उसको एक राइट डायरेक्शन में डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, ताकि वो जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी पावर है, उसका हम सही यूज सही समय पर कर सके। सही समय पर भी यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वही जोर आते रहेंगे और टाइम बीत जाने के बाद लगाए तो वो यूजलेस है। इसीलिए डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि सही टाइम पे सही पावर का यूज किया जा सके। उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग ऐसी होनी चाहिए जो लोग डेडिकेटेड हों, अपने काम के प्रति बहुत अच्छे से समझते हों, ड्यूटी को अच्छे से निभाते हों, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल अपना घर समझ के वो काम करें। तो ऐसे हमें स्टाफ का सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी हमारी प्रोसेस है, चाहे वो इंटरव्यू है या रिटन टेस्ट है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो स्टाफिंग बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्किलफुल स्टाफ हो, एजुकेटेड स्टाफ हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो, ताकि हमारे काम को बहुत अच्छे से वो कर सके। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हम काम कर सकते हैं। ये जितना सब कुछ भी है, जब तक हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे नहीं या ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। जो भी हम काम करते हैं उससे पहले हमें एक प्लान करना बहुत जरूरी है, और ये प्लान ओरल नहीं होना चाहिए। जो भी हम काम करना चाहते हैं या काम हम करने जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक लिखित हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हमने किस किस पॉइंट्स पर बात करनी है, किस पॉइंट पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सब रिटर्न में होना चाहिए, ताकि जो भी एक पॉइंट हमारे से छूटे तो हम नेक्स्ट पे उस पे बात कर सके। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात करूंगी कि प्लानिंग में फीडबैक होना भी बहुत जरूरी है। जिस भी चीज पर हम हैं उसे हमने अप्लाई किया और देखा कि सक्सेस हमारी कितने परसेंट है, उसके बाद हम उसको दोबारा से अप्लाई करें कि कहाँ पे हमारी चूक हुई थी, क्या कि हमारा रिजल्ट इतना नहीं आया है। उसके बाद फीडबैक के बाद
हम उस पर फिर से प्लान करें, जो पॉइंट्स छूटे थे उसकी प्रॉपर फिर से प्लानिंग करें, ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं, उसी फील्ड पे हम ज्यादा काम करें। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपस में हम समन्वय नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे नहीं, एक दूसरे की बात का सम्मान नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट का बन जाता है एटमॉस्फेयर। तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ते रहें। इसीलिए उसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन बहुत जरूरी है। जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर एक सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि और ये सुपरविजन भी वन हैंडेड होना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर किस काम में कितनी ज्यादा जरूरत है हर चीज की, चाहे वो स्ट्रेंथ है चाहे वो वर्किंग है। इसीलिए सुपरविजन के बाद ही हम आगे काम करते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन। लास्ट जो आता है वो मोटिवेशन है, कि हमारी लीडरशिप की क्वालिटी और मोटिवेशन की क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए, ताकि अगर स्टाफ में अगर हमारा कुछ ऐसा हो भी रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी टाइम टू टाइम कुछ स्पीच होनी चाहिए, या मोटिवेशन हम कैश में भी कुछ दे सकते हैं या रिवॉर्ड दे सकते हैं, कुछ फंक्शन कर सकते हैं, ताकि जो स्टाफ है वो रिफ्रेश हो सके और दोबारा से उसे डबल स्ट्रेंथ के साथ अपने काम में लग सके। ये देखिए एक पिक्चर है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है कि देखिए एक लेडी कितना सब कुछ कर सकती है। उससे सबसे पहले एक घड़ी दिखाई है, घड़ी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ करती है, कैलकुलेट, लैपटॉप पे काम करती है, ऑफिस गोइंग है, सब काम वो टाइम से कर देती है, और उसी के साथ साथ वो किचन में भी काम करती है। इसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले है इमोशनल फैक्टर्स। देखिए अगर कोई भी लेडी बाहर जाके काम करती है तो उसकी नीड्स भी होती है, साथ साथ उसे इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो उसके घर से उसे इमोशंस के थ्रू सपोर्ट चाहिए, जो उसकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जब तक उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अब इसमें पुल फैक्टर्स आ रहे हैं। यही इमोशंस होते हैं कि उसके कुछ जो घर के परिवार के लोग हैं उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज प्लस में आ जाती है। वो वुमेन जो है घर का भी ये सब कुछ संभालने के बाद अपने काम पर भी वो ध्यान दे सकती है, और इसी के साथ साथ वो सोसाइटी में भी पूरा काम कर सकती है अगर ये पुल फैक्टर्स उसके साथ काम करते हैं। इसके बाद बैलेंस फैक्टर्स आता है। ये सब कुछ वो बैलेंस कर सकती है बशर्ते कि उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके साथ हो, जो उसके स्पाउस है वो उसके साथ रहें, ताकि जो उसकी मेंटल पावर है वो बढ़ सके। मेंटल पावर से ही फिजिकल पावर आगे बढ़ती है और बूस्ट होती है। इसके बाद पुश फैक्टर्स भी आने चाहिए कि कुछ लोग आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग खींचते हैं, तो वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा है कि आपको लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, डिमोरलाइज। लेकिन जब हमारे पास पुल फैक्टर्स हैं जो हमें आगे खींचते हैं, हमारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है, हमारा परिवार हमारे साथ है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद है पूर्व उद्यम निर्णय निर्माण, यानी कि जो हम काम करना चाहते हैं उससे पहले हमें बहुत कुछ करना है। ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानिंग में हमारे ये सब कुछ आता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले आवश्यकता विश्लेषण, कि कितनी आवश्यकता है, नीड्स कितनी है।
जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हम सब कुछ सोसाइटी में लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी नीड्स कितनी है, ये सब कुछ हमें एक सर्वे से मिलेगा कि हम फील्ड का सर्वे करें, उसको प्रॉपर हम लिखित में लें, रिटर्न में लें कि जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उसकी नीड्स कितनी है, डिमांड कितनी है। उसके बाद संसाधन विश्लेषण, रिसोर्सेज क्या है उस चीज के, कि वो हमें रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ से, यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसके बाद हम उसको तैयार कैसे करेंगे, उसको सप्लाई कैसी होगी। रिसोर्सेज का भी विश्लेषण बहुत जरूरी है। उसके बाद है मांग, डिमांड, डिमांड कैसी है उसकी। उसके बाद आपूर्ति यानी कि सप्लाई, मांग और पूर्ति में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, मांग और आपूर्ति का ये पूरा चैप्टर्स होते हैं, जो आप अगर थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो ये बहुत जरूरी है, इसमें संतुलन और बैलेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद मांग और आपूर्ति का संतुलन विश्लेषण, ये विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसमें सारा काम नहीं करेंगे, मांग, डिमांड और सप्लाई में, ये हमारे उसके लिए जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, इसका सर्वे बहुत जरूरी है, और डिमांड और सप्लाई के बीच जो एक विश्लेषण है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद है व्यवसाय अवसर विश्लेषण, कि अपॉर्चुनिटीज देखिए मिलती भी हैं और कई बार हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करनी पड़ती है। जिस चीज की डिमांड नहीं है वो क्रिएट भी की जा सकती है, ये हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक आप फेसबुक पे या किसी पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुल्हड़ वाली चाय। देखिए एक व्यक्ति है, उसने देखा कि चाय तो हर जगह बिक रही है, अब इसमें विशेष क्या है। उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि तंदूर में कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ लिए, उनको गर्म किया और सिंपल चाय बनाने के बाद उस कुल्हड़ में डालकर, और उसकी जो एक स्मेल थी, मिट्टी की एक स्मेल, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, उससे अच्छी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, उसमें उस चाय को डालकर और वो चाय उनको सर्व की। और धीरे धीरे डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई है, देखिए चाय है, सिर्फ उसने एक इनोवेशन किया और उसे अप्लाई किया, और आज उसकी चाय की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कुल्हड़ वाली चाय, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसकी लेबर आप देखिए कितनी लग रही है, और उस पे हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो कितनी है, प्लस इसका हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है। तो ये होते हैं अवसर विश्लेषण, यानी कि अपॉर्चुनिटीज अगर हमें नहीं मिल पा रही है तो हमारे अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सके। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ कि पान की तो हर जगह देखिए दुकानें मिलती हैं, आपको हर जगह मिलती हैं, लेकिन बनारस में एक व्यक्ति ने इस पे भी इनोवेशन किया कि वो आग वाला पान, लोगों में क्रियोसिटी भी होती है कि हम एक बार तो चख कर देखें क्या है। उसमें उन्होंने कपूर डाल के उसको आग लगा के और फायर करता हुआ ही पान उसके मुंह में डाल देते हैं, जो वो जाते ही मुंह में आग बंद हो जाती है, लेकिन उसका एक टेस्ट आता है एक फायर का, तो वो टेस्ट लोगों को अच्छा लगा। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको हम क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद है व्यवसाय प्रतिस्पर्धा विश्लेषण। प्रतिस्पर्धा यानी कि किस तरह की दौड़ है, आप देखिए रेसिंग कैसी है, वो जरूरी है कि हमारे विरोधी कौन से हैं, हमारे सेम जो हमारा काम है उसके साथ साथ हम जैसे और कितने हैं, तो उसमें जो रेसिंग है उसको भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद तकनीकी व्यवहारिकता, टेक्निक्स कैसी हैं उसमें, वो जरूरी है। वित्तीय व्यवहारिकता, यानी कि हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारा बजट है वो कैसा है। अवसरों को भांपना, जैसे मैंने अभी बताया कि वहां पर वो कैसे होंगे जो अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद उद्यम का चयन, हमें कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए किस तरह का काम करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। परियोजना का सूचीकरण,
उसमें लिस्टिंग बहुत जरूरी है, बाजार सर्वेक्षण यानी कि सर्वे बहुत जरूरी है, और रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद गैर वित्तीय साधनों को जुटाना, यानी कि जो वित्त से संबंधित नहीं है, यानी कि उनको भी जुटाना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जुटाना बहुत जरूरी है। वित्तीय संसाधनों को जुटाना यानी कि बजटिंग से हमारे पास जो कैश है उसको जुटाना बहुत जरूरी है। फाइनेंस हमारे पास बहुत जरूरी होना चाहिए, उसके बिना कोई भी काम नहीं चल पाता है। इसके बाद मैं आगे बात करना चाहती हूँ, जो मैनेजमेंट का मूल है, मैनेजमेंट इसके बिना नहीं चल पाता है। सबसे पहला जो इसका वर्ड है पोस्ट कोड, इसको लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने दिया था। किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट है, चाहे वो घर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये एक वर्ड जो है वो बहुत काम करता है, ये है पोस्ट कोड। आप घर में भी देखिए, अगर हम घर में हैं वहां पर भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वहां पर भी ये वर्ड काम करता है। स्कूल है, कॉलेज है, या कितनी भी बड़ी फैक्ट्री है, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये काम करता है। इसमें सबसे पहले प्लानिंग आती है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसपे हमने पीछे बात कर ली है। उसके बाद है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। सिंगल कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिंगल कमांड नहीं होगी हमारे पास तो वो सब चीज बिखर जाएगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। जो भी काम हो रहा है अपने सीनियर को उसकी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद ही फीडबैक होगा। और सबसे लास्ट में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है बजट बनाना। जब तक हमारे पास प्रॉपर बजट नहीं होगा तो हमारे बाकी के फैक्टर्स खराब हो जाएंगे। इसीलिए बजट बहुत जरूरी है, प्रॉपर बजट में हमारा काम होना चाहिए। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास रिस्क वाला फैक्टर भी जरूर होना चाहिए, कि हम 1% हमारे बजट में से उस हिस्से को भी जरूर रखें कि अगर हमारी ये प्लानिंग फेल हो जाती है तो एटलीस्ट हमारे पास वो एक रिजर्व वाला पॉइंट भी जरूर होना चाहिए। जैसे हमने भी देखा है कि गाड़ियों में या हर चीज में पेट्रोल के लिए रिजर्व बहुत जरूरी होता है, तो रिजर्व में हमारे पास बजट जरूर होना चाहिए, ताकि जो सरकमस्टांसिस है वो किस ओर मुड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो रिजर्व में हमारे पास कुछ बजट होना चाहिए, ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो फेल ना हो सके। इसके बाद देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि टी का फॉर्मूला दिया है हमारी किरण बेदी जी, जो पुदुचेरी की गवर्नर है। तो उन्होंने जो बताया है वो देखिए, व्हेन ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप आता है तो उसके लिए फॉलो द टी मंत्रा। टी में देखिए उन्होंने क्या कहा है, T फॉर ट्रस्ट, E फॉर एम्पावरमेंट, A फॉर अकाउंटेबिलिटी। यानी कि टी में आपको ये बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और जब एक वुमेन ऐसा काम करती है या मेन करता है तो उसमें ये तीनों फैक्टर अगर होते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। अब हमारा टाइम लगभग पूरा होने लगा है, तो हम इसको टाइम से हम अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए बैलेंस एंड अभी आपके पास है मैडम 10 मिनट 15 मिनट है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 सर, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हम टाइम जी से खत्म करें। जी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब तक हम लेक्चर ही देते रहेंगे और खुद उस पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो वो चीज जी विरोधाभास हो जाएगा ना। जी हम जी लेक्चर बिल्कुल। देते रहें कि आप समय पे काम खत्म करो, और इस लेक्चर को ही हम 1.5 घंटे का कर दें तो वो चीज रिलेवेंट नहीं रहेगी। जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें भी उस पर काम करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास है बैलेंस एंड वेलबींग। देखिए इसमें भी यही दिखाया गया है कि वर्क और डिजिटलाइजेशन है, उसके बाद फैमिली है, वुमेन है, इन सबको बैलेंस में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो वो ये फिगर ही बिगड़ जाएगी, तो हमारी जिंदगी की तो बात ही क्या है। इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने ये अभी वैसे हमने विस्तार में पढ़ा है, तो उद्यमशीलता की क्षमताएं कौन कौन सी हैं ये भी हम
पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा और बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारण है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे। टारगेट को जब तक हम निश्चित नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है जोखिम उठाना। हम जितने ज्यादा रिस्क टेकिंग होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये इकोनॉमिक्स का भी फॉर्मूला है, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद दूरदर्शिता, हम कितने दूरदर्शी हैं, यानी कि कितना हम दूर की सोच पाते हैं, जिम्मेदारी को कितना उठा पाते हैं। जोखिम को नियंत्रण करना, उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। पहल करना, इनिशिएटिव करना, कि जब तक हम किसी भी चीज को इनिशिएटिव नहीं लेंगे उसका, तो वो चीज उतनी फायदेमंद नहीं होगी। पहल करना तो बहुत जरूरी है। जीवन में पहला कदम ही तो उठाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद चुनौतियों का सामना करना, अवसर को भांप कर उसका फायदा उठाना, नए और असामान्य व्यवसाय का चयन और उसी के अनुरूप कार्यवाही करना, विषय की संपूर्ण जानकारी हासिल करना, बाजार की मांग और पूर्ति का संपूर्ण विश्लेषण एवं संतुलन का आकलन करना, विशेष गुणवत्ता, नवीन पहल और कार्य कुशलता पर ध्यान केंद्रित करना, समस्या का निवारण करना, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य नीति में जरूरी फेरबदल करना। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, हमने अगर जो नियम बनाए हैं वो समय के साथ साथ अगर उसमें हमें कुछ महसूस हो रहा है तो उस पर अड़े ना रहे, उसमें फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जितने हम फ्लेक्सिबल होंगे, हम सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है। जितने हम फ्लेक्सिबल होते जाएंगे, झुकते जाएंगे और जहां हमें सख्त रहना है वहां सख्त रहेंगे, तो निश्चित ही हम नई पीढ़ी के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। उसके बाद है आत्मविश्वास, सुव्यवस्थित नियोजन, चरणबद्ध और क्रमानुसार योजनाएं। जितना भी हम करेंगे वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। बड़े लक्ष्यों को उपलक्ष्यों में विभाजित करके योजनाएं बनाना, इसको ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू काम करना। उसके बाद दृढ़ विश्वास और प्रभावी कार्य नीतियां, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमताओं को अर्जित करना एवं इनका विकास करना। जो एक काम है उसमें ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है, कि अगर हमारे पास स्टाफ ऐसा है कि जो कम ट्रेंड है, तो समय टाइम टू टाइम उनका अपडेशन बहुत जरूरी है। उन्हें ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। आप देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम अपडेशन के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है स्टाफ, उनको भी ट्रेंड किया जाता है, ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके साथ वो अंडरस्टैंड कर पाए। इसीलिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अपने समूह को संगठित रखना और सभी को साथ लेकर चलना, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को सुनियोजित वर्गीकरण करना, उद्यम के माध्यम से सशक्तिकरण, नए विचार और गैर पारंपरिक अवसर, तकनीकी कौशल, सक्षमता उन्मुखता, निवेश संबंधी पहलू, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है हमने, निर्णय लेने के कौशल पर विकास करना, क्विक डिसीजन पावर होना चाहिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना चाहिए और लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए। ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसमें एक एक पॉइंट पर बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन हमारे पास ना तो इतना समय है और ना ही इतना हम इस पर अधिक बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जब हम एप्लीकेबल करेंगे, उसको हम समझेंगे, तो ये सब चीजें हमें खुद ही समझ में आ जाएंगी। उसके बाद मानदंड स्थापित करके उन्हें योग्य बनाना, क्रय विक्रय में सहभागिता, यानी कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है या सेल परचेज है, उसमें भी किस तरह का हम काम कर सकते हैं। ये सब कुछ चीजें अनुभव के साथ भी आती हैं। उसके साथ गतिशीलता बढ़ाना, संसाधनों को जुटाना और उन तक पहुंच स्थापित करना, परिसंपत्तियों पर नियंत्रण, संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण कायम करना, सामूहिक बातचीत, कार्यनीति और पक्ष समर्थन, उत्पाद आधारित पसंद का निर्माण करना, जो हमने अभी पसंद की बात की है, बाजार का निर्माण करना, अपने खुद की भी मार्केट हम क्रिएट कर सकते हैं, मांग का सृजन करना, वचनबद्धता। इसमें और भी एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये आप देख ही रहे हैं, इसमें सहभागिता बहुत जरूरी है, कि हम अपने स्टाफ को, जो भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें उनकी सहभागिता भी उनकी बहुत जरूरी है। हो सकता है
उनके पास भी कई ऐसे आइडियाज हो जो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इनको अब पढ़ने की आवश्यकता है, आप सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद है, हमारे पास ये बहुत जरूरी है कि जो इतना सब कुछ हमने देखा है, उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लाइव मोटिवेशन देते हैं। अब देखिए, इसमें उद्यमशीलता के कुछ ऐसे मील के पत्थर हैं हमारे पास, जिन्हें हम अपना एक अगर आदर्श बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिविटी आती है कि अगर वो इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यानी कि जब वो उन्होंने नया काम करना शुरू किया होगा, तो ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स उनके जीवन में आई होंगी, तो उन्होंने उन ऑब्स्टेकल्स को किस तरह से ओवरकम किया और अपना नाम किया। तो हमारे जीवन में जब इस तरह की ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इनमें से किसी एक का भी नाम लेकर अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो हम भी अपनी ऑब्स्टेकल से आगे बढ़कर ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सबसे पहले है JRD टाटा। टाटा आज विश्वसनीयता का नाम है। हम कोई भी ब्रांड लेते हैं तो हम देखते हैं कि टाटा है तो बेस्ट है। यानी कि इस नाम को स्टेब्लिश करना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितना काम किया है, वो आप समझ सकते हैं। और लगातार वो इस ब्रांड के नाम को, उसकी फेथ को बनाए हुए हैं। इसमें इनकी एक बात देखिए कितनी अच्छी है। वो ये कहते हैं कि मैं सही फैसले नहीं लेता हूं, बल्कि अपने फैसलों को सही करके दिखाता हूं। यानी कि अपने स्ट्रेंथ, अपने कॉन्फिडेंस से वो, अगर उन्होंने गलत फैसला भी लिया है, लेकिन उनमें इतना स्टेमिना है कि वो अपने उस डिसीजन को सही करके प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है, ये देखिए महाशय धर्मपाल गुलाटी। जब इन्होंने मसाले बेचना शुरू किया था तो साइकिल से बेचते थे ये, और हाथ से कूट कर बेचते थे। इन्होंने भी नया इनोवेशन किया कि क्यों ना हम रेडीमेड मसाले बेचें। उस समय तो हाथ सबके घर में मसाले होते थे, लेकिन इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया और आज देखिए कितनी तरह के मसाले मार्केट में हैं और सब बिक रहे हैं। लेकिन पहचान जो है वो MDH की एक अलग ही है। उसके बाद बिल गेट्स, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे कार्यक्रम उद्योग के मानक बन गए हैं। इन्होंने भी एक बहुत एक मुकाम हासिल किया है और ये कहते हैं कि मैं अपने काम को सबसे लेजी पर्सन्स को देता हूं, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट वे निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो ये एक कुछ ऐसे मंत्रास हैं कि आप जब इनको अनुभव में आएंगे, जब हम रियल लाइफ से जब हमारा सामना होता है, तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स निकल कर आते हैं। तो इनका जो है ये मंत्रा कि देखिए, मैं अपने काम को, टफेस्ट वर्क को मैं लेजीएस्ट पर्सन को देता हूं कि वो उसको सॉल्व करने के लिए इजीएस्ट वे निकालते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके बाद है स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। कि ना वो बोल पाते थे, ना सुन पाते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितनी तरह की थ्योरीज डेवलप की हैं और किस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल किया है, ये हम इनसे सीख सकते हैं और किस तरह से उन्होंने काम किया। इसके बाद है इंदिरा नुई। देखिए, अमेज़न की निदेशक मंडल में शामिल होने वाली दूसरी अश्वेत महिला है ये। इससे पहले इन्होंने फरवरी में शुरुआत में स्टारबक्स की कार्यकारी रोजलुक ब्रेवर्ड से अमेज़न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुई थी। और ये कितनी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है, ये आप सभी जानते हैं। और उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कितनी उनकी कॉन्फिडेंस है, ये हम सभी को एक प्रेरणा देता है। उसके बाद है शोभा कपूर एक टेलीफिल्म्स। आज देखिए, जो डेली सोप है, उन्होंने किस तरह से उस टाइम को पहचाना, अवसर को, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया और उसका किस तरह से फायदा उठाया। ये देखिए, अगर क्रिएटिव डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बालाजी टेलीफिल्म्स की, इन्होंने महिलाओं के लिए रोजाना पारिवारिक ड्रामा धारावाहिक आरंभ किया। पहला भारतीय मध्यम वर्ग के लिए हम 5
सफल शो था, इसके बाद उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने महिलाओं की दोपहर के टाइम को चूज किया, कि उन्हें पता है कि सिर्फ दोपहर के टाइम पे जो है महिलाएं फ्री होती हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ साफ सुथरे किस्म के धारावाहिक बनाते हैं। मेरे धारावाहिक में महिलाओं को मजबूत और सकारात्मक छवि में दिखाया जाता है, जिनके सपने अपने मूल्य हैं, जो के त्यों रहते हैं, उनका अपना एक सोचने का ढंग है। इसमें उन्होंने महिलाओं को एक अलग मुकाम दिया है, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद है रितु बेरी, निदेशक है रितु बेरी डिजाइन्स की। आज विदेशों में भी इसकी धूम है और जाना माना नाम है। और इसी तरह से बीबा, मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला, सब्यसाची और कई तरह से नाम है जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। देखिए, मैंने कोशिश की है कि वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज को मैं ले सकूं, कि हर फील्ड से जिन्होंने अपने अपने नाम किए हैं। यहाँ पर मैंने फील्ड भी अलग अलग लिया है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, फैशन डिजाइनिंग फील्ड है, और टेक्नोलॉजी की फील्ड है, एजुकेशन की फील्ड है, ताकि आपको किसी भी फील्ड में अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो हम उसे अपना आइकन मानकर और उनको ही फॉलो करके बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इसके बाद धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक हैं। इनके बारे में हम सभी जानते हैं किस तरह से उन्होंने स्थापना की है, और आज सैकड़ों लोग जो है रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर कार्सन भाई पटेल, शायद इसके बारे में हम लोग कम जानते हैं। इन्हें निरमा मैन कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला जो वॉशिंग पाउडर था वो निरमा था। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो डिटर्जेंट पाउडर की मांग करते हैं तो सिर्फ कहते हैं एक निरमा दे दो। उन्हें कोई मतलब नहीं है वो व्हील है या सर्फ एक्सेल है या कोई भी है, लेकिन एक निरमा यानी कि डिटर्जेंट पाउडर का पर्याय बन गया है। तो निरमा मैन इन्हें कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहला डिटर्जेंट पाउडर बनाने के बारे में सोचा था। उसके बाद लक्ष्मी भाई मित्तल, ये एक कबाड़ी के बेटे थे। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो आज स्टील इंडस्ट्री के मालिक हैं तथा 15 से भी अधिक देशों में इन्होंने अपनी स्टील को निर्यात करने का कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। आज स्टील इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है तथा भारत के उद्योगपतियों में तथा प्रथम 5 अमीरों में इनका नाम आता है। तो देखिए, कबाड़ी से लेकर आज जो इन्होंने सफर तय किया है, तो इसमें निश्चित ही बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आई होंगी, बहुत निराशा हुई होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उन सब से पीछे हटकर, उन सब से उनको सब किनारे करके ये आज जिस मुकाम पे है, तो वो हम सबको एक मोटिवेशन देता है। और इस सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो भी हमने आपको बताया है, ये मेरी कोशिश रहेगी कि अगर हम इनसे कुछ भी सीख पाए तो मेरे लिए वही एक फीडबैक होगा, मेरे लिए वही सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर मैं किसी एक की भी लाइफ अगर बदल पाई तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने जिस तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा जो चित्रण अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया वो काबिले तारीफ है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके प्रेजेंटेशन की कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स रखना चाहूंगा। आपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, इसके साथ ही आपने ओला उबर का एक जो वैचारिक उदाहरण दिया, उस वैचारिक उदाहरण के साथ में आपने विचार की शक्ति के बारे में बताया, डॉक्टर वेद प्रताप वेदी जी को कोट करते हुए कि परमाणु बम से ज्यादा शक्ति विचार की शक्ति, और परमाणु बम का भी जो है वो भी एक विचार ही था। विचार आने के बाद में परमाणु बम का निर्माण है। बेशक आपका ये कहना बिल्कुल सही है, और बिना विचार के कोई भी चीज संभव नहीं। विचारों में तो पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध तक हो गए हैं, और विचारों को लेकर के देखा जाए तो बहुत से बड़े बड़े डिसीजन भी स्थापित हो गए हैं, तो बहुत सारे कलह भी हैं वो शांत होकर के शांति प्रिय मुद्दों पे चले गए हैं। तो इससे मैं सहमत हूँ, और मेरे जो प्रिय दर्शक हैं और प्रतिभागी हैं वो भी इससे सहमत हैं। इसके साथ ही आपने जो मास्लो का उदाहरण पदानुक्रम सिद्धांत बताया, उसमें स्व प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, आत्म सम्मान,
तादात्म्यता, संबंध, सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत, इन सब के बारे में बताया। नीड्स और वांट्स के बारे में आपने डिफरेंशिएट किया। और रतन टाटा का उदाहरण आपने दिया, सुधा मूर्ति जी का आपने उदाहरण दिया। सफल एंटरप्रेन्योर के लिए आपने नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स की बात भी आपने कही। और 4Ps की बात करते हुए आपने प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन और पब्लिसिटी की भी बात भी आपने कही। 3Rs का फॉर्मूला आपने दिया, रिकॉग्नाइजेशन, रेस्पेक्ट और द रिवॉर्ड। कैलाश सत्यार्थी जी के उदाहरण भी आपने दिया। उद्यमशीलता संबंधी शिक्षा को के बारे में बताया। महिलाओं की मैनेजमेंट गुणवत्ता के बारे में आपने जानकारी दी। और फंक्शंस ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर को आपने बताते हुए इनकी लीडरशिप, डायरेक्टिंग, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन और मोटिवेशन की बात भी आपने कही। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपने इमोशनल फैक्टर, पुल फैक्टर, बैलेंस फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में आपने बिल्कुल बखूबी तरीके से आपने हमारे जो सभी प्रतिभागी हैं उनको आपने बताया। इसके साथ ही आपने पूर्व उद्यम निर्माण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। इसमें आवश्यकता, संसाधन, मांग, आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति का संचालन, व्यवसाय और अवसर के बारे में, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, तकनीकी व्यवहारिकता, वित्तीय व्यवहारिकता एवं अवसरों को भापने के विश्लेषण के बारे में जानकारी दी। आपने इसको बखूबी कुल्हड़ की चाय और आग वाला पान का जो उदाहरण दिया वो काबिल तारीफ है। वाकई में ऐसे उदाहरण है वो एक जो जूनियर लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जो अभी फील्ड के अंदर, उनके लिए एक वाकई में मोटिवेशन का काम करेंगे यदि वो कुल्हड़ वाली चाय और आग वाले पान जैसे इनोवेटिव या आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। उद्यम का चयन, परियोजना का जो सूचीकरण है, बाजारू सर्वेक्षण है, रिपोर्ट, गैर वित्तीय साधनों, संसाधनों के बारे में आपने जानकारी दी। दूसरा, आपने एक जो पोस्ट डिकॉब लूथर बुलिक एवं लिनार उर्बिक द्वारा प्रदान प्रबंधन की बात भी कही, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग की बात में लास्ट में आपने एक चीज और भी जोड़ी कि जितना हम रिस्क लेंगे उतना फायदा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट की भी आपने बात इसके अंदर कही। किरण बेदी जी का आपने टीका फॉर्मूला बताया। ट्रस्ट, एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की। बैलेंस, वेल बीइंग के लिए आपने कहा। डिजिटलाइजेशन और वर्क की बात भी आपने महिलाओं के संदर्भ में कही। उद्यमशीलता की तमाम क्षमताओं के बारे में आपने बताया। उद्यमशीलता के कुछ मील के पत्थरों में बताया। उनके अंदर आपने JRD टाटा का उदाहरण दिया, महाशय धर्मपाल गुलाटी का, बिल गेट्स का, स्टीफन हॉकिंस, इंदिरा नूई, एकता कपूर, शोभा कपूर और भी बहुत सारे आपने बेहतरीन उदाहरण दिए। निर्मा का आपने बेहतरीन उदाहरण दिया जो प्राय बन चुका है। इन सभी पहलुओं को आपने 1 ही घंटे के प्रेजेंटेशन में समाहित किया, वो काबिल तारीफ है। इसका हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल लेना चाहूंगा जो हमारे प्रतिभागियों का भी जी, विद्यार्थियों का है। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि आपका यूथ के लिए क्या एक सक्सेस मंत्र आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए देना चाहेंगे? बिल्कुल चुनिंदा शब्दों में वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यूथ के लिए यही है कि जो हम अलग से कुछ सोच सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, वही है। जब भी आप जो लीग पे चल रहा है उससे अगर आप अलग ही करेंगे, अलग सोचेंगे, अलग की डिमांड क्रिएट करेंगे, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। और आजकल की यूथ के पास तो ना कॉन्फिडेंस की कमी है, ना स्किल की कमी है, ना अपॉर्चुनिटीज की कमी है। बस उन्हें एक बहुत छोटे से अवसर की जरूरत है और बहुत अच्छे से वो काम कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाली बनिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विदुषी शर्मा जी। आपने अपने बेहतरीन विचारों से प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ द पारुल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट सर, वाइस चांसलर सर एंड रजिस्ट्रार सर, वी थैंक यू मैम एंड वी वांट टू सी यू अगेन एंड अगेन ऑन द PU वेबिनार प्लेटफॉर्म। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी PU वेबिनार तकनीकी टीम का भी, जिन्होंने कि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। किसी प्रकार का कोई टेक्निकल ग्लिचेस भी हमारे सामने नहीं आया। आई ऑल्सो थैंकफुल टू अवर फैकल्टी मेंबर्स, जिन्होंने कि रात दिन लग के इस कार्यक्रम का प्रमोशन भी किया और इसकी रूपरेखा तैयार की, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।